हेलो स्टूडेंट्स, मैं सौरभ गोयल आज आपको पढ़ाने जा रहा हूँ केमिकल बॉन्डिंग। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय द केमिकल बॉन्ड? Chemical bond is an imaginary force of attraction between two atoms that is basically responsible to join that two atoms together. Basically, what is a chemical bond? Look, chemical bond. What do you mean by this term, chemical bond? This is an imaginary force of attraction. Imaginary force of attraction that binds two atoms together. एक इमेजिनरी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जो कि बाइंड करता है दो एटम्स को। मींस इसको आप ऐसा समझ सकते हो, एक एटम दूसरा एटम, इन दोनों का क्या है? न्यूक्लियस, जिसमें क्या है? प्रोटॉन्स, और बाहर क्या है? इलेक्ट्रॉन्स। इसका प्रोटॉन इस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता है और ये प्रोटॉन इस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता है। तो आप जो ये जो कंडीशन देख रहे हो, दिस इज कॉल्ड chemical bond. This is known as chemical bond. Clear? Now, अब हम लोग बातें करते हैं केमिकल बॉन्ड के टाइप्स कितने तरह के हैं। केमिकल बॉन्डिंग में हम लोग चर्चा करें तो आयोनिक बॉन्ड और दूसरा हो गया कोवैलेंट बॉन्ड, जो आपके सिलेबस में पढ़ना है। आयोनिक बॉन्ड आर दोस टाइप ऑफ बॉन्ड्स दैट इज फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन या बिटवीन द एटम ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। तो कॉम्बिनेशन ऑफ मेटल और नॉन मेटलिक एटम अगर आप देखोगे तब वहां पे जो एग्जिस्ट करेगा उसे कहते हैं हम आयोनिक बॉन्ड्स। अब इसके बाद बातें आती हैं कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है? कोवैलेंट बॉन्ड उससे के बॉन्ड को कहते हैं जो कि दो नॉन मेटल एटम के बीच में एग्जिस्ट करता है। दो नॉन मेटल के एटम अगर एग्जिस्ट कर रहे हैं और उनके बीच में अगर कोई बॉन्ड है तो उसे हम लोग नाम देंगे क्या? कोवैलेंट बॉन्ड। नाउ कोवैलेंट बॉन्ड की अगर हम बात करें तो वहां पर आता है पोलर कोवैलेंट बॉन्ड, पहला टाइप, और हमारे पास दूसरा टाइप आता है नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। पहला टाइप क्या रहता है? पोलर कोवैलेंट bond, and our next type is non-polar covalent bond. What is polar covalent bond? The bond that is formed between two different non-metals. The bond that is formed between two different non-metal is polar covalent bond. While the bond that is formed between same non-metals, between same non-metallic atom, that is called non-polar covalent bond. Let us see the example first. What is polar covalent bond? Like HCl, hydrogen and chlorine, both are different atoms, and the bond that bind together these two non-metallic atoms is polar covalent bond. Now, what is polar? Pole means there are two poles, negative pole as well as a positive pole. If we talk about the negative pole, this is chlorine that attract electron towards itself. Therefore, it have the negative pole. And what is hydrogen? It must have a positive pole. Why? Because it have a tendency to lose electron towards chlorine in this case. Now, if we talk about H2O, in case of oxygen there are 2 minus and hydrogen 1 plus, means oxygen have tendency to gain electron while hydrogen have tendency to lose electron. Therefore, hydrogen has a positive charge while oxygen have a negative charge. Therefore, we have two poles, a positive pole as well as a negative pole, and in this case we can say it's a polar covalent bond. Now, let us jump to the next topic. That is non-polar covalent bond. In case of non-polar covalent bond, that is a combination of same non-metallic atom, same non-metallic atoms. Say for example, oxygen, chlorine, nitrogen, bromine. These all are gaseous forms. As for example, one more we have to take, then hydrogen, H2. These all are combination of same non-metals. Why non-polar? Because both of the atoms which are combining together have same electronegative power. Means both of the atoms have tendency to accept electron. The power to accept electron is same. And if the power to attract electron is same, we can say that the bond, none of them will have any charge. So we can say that this is non-polar covalent bond. Now, if we talk about covalent bond,
Again we are repeating these words are formed by the combination of two non-metallic atoms. And what is ionic bond? These are formed by the combination of metal and non-metallic atoms. Now we are discussing about chemical bonding. Then in chemical bonding, the first type of chemical bonding is ionic bond and the second one is covalent bond. Note it down and we will discuss further. Now, let us discuss some other types of bonds which exist between two atoms. Let us see. In chemical bonding, we are discussing the other types now. For example, the third type that we have to study is hydrogen bonding. Now, what is hydrogen bonding? Look, this is basically a bond that exists between hydrogen and most electronegative atoms, that is fluorine, oxygen, nitrogen. Now, अभी तक जो हमने देखा that is all about ionic bond and covalent bond that exists between two atoms. Now, we are talking about hydrogen bonding. This is a bonding case, or this is a bond that exists between two molecules, or which is responsible to bind molecules together. Clear? Atoms को ही सिर्फ bind नहीं करता, ये molecules को bind करने में काम आता है. तो जो molecules को पकड़ के रखे, सिर्फ atoms को नहीं, तो वो हमारे सामने आता है एक concept, वो है क्या? Hydrogen bonding. तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की बात करें तो दिस इज अ बॉन्ड दैट एग्जिस्ट बिटवीन हाइड्रोजन एंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, दैट इज फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन. यही तीन केसेस हैं. एज फॉर एग्जांपल वी हैव स्टडीड दैट H2O, here it is 2 minus 1 plus 1 plus. Clear? Now we have the another atom, oxygen, hydrogen. Now let us see, there we have two molecules of water. There is completion of electron or octet formation in case of oxygen. Oxygen के केस में क्या है? Octet पूरा हुआ है दोनों में. यहाँ देखो 2 माइनस 1 प्लस, और इसने जितना बॉन्डिंग मैक्सिमम बना सकता था इसने बनाया. मगर ऑक्सीजन का टेंडेंसी तो है इसके न्यूक्लियस में कि दूसरे के इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? खींचेगा. तो खींचेगा तो क्या करेगा? एक इमेजिनरी बॉन्ड बनेगा. Look, ये इमेजिनरी बॉन्ड बनना शुरू, जो डॉटेड लाइन से आपको मैं दिखाऊंगा. ठीक है, ये जो इमेजिनरी बॉन्ड बना है डॉटेड लाइन से, इसी को कहते हैं क्या है? हाइड्रोजन बॉन्ड. क्या कहते हैं बेटे? हाइड्रोजन बॉन्ड कहलाता है. अब यहां देखो, ये हाइड्रोजन बॉन्ड कहला गया. अगर तुम्हें एक और एटम दिया जाए कि सर ठीक है, यहां पर ऑक्सीजन, यहां हाइड्रोजन, यहां पर हाइड्रोजन और यहां पर देखो, फिर डॉटेड लाइंस हमने दिखाया, इसको क्यों ना ब्लू पेन से यहां दिखाएं. ठीक है, अब यहां देखो ऑक्सीजन, यहां पर हाइड्रोजन, यहां पे 2 माइनस प्लस प्लस हम लोग डाल देते हैं, बेटर रहेगा रिप्रेजेंटेशन में. अब अट्रैक्ट हो. अब यहां देखो एक केज लाइक स्ट्रक्चर बना, एक खाली जगह बन गया, एम्प्टी स्पेस.
अब इस एम्प्टी स्पेस में क्या होता है, इसी हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण वाटर मॉलिक्यूल्स आपस में एक दूसरे को बाइंड कर पाते हैं। तब यहां पर आप बात करेंगे आइस क्यूब, देख रहे हैं बाइंड हो रहा है। हम लोग कहते हैं ना व्हाई आइस फ्लोट इन वाटर, भाई आइस फ्लोट क्यों करता है पानी पे, जबकि आइस इज अ सॉलिड, इट शुड सिंक बट इट स्टिल फ्लोट्स ऑन वाटर बिकॉज़ ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग मॉलिक्यूल्स arrange in such a way that it form a cage-like structure in which gas is trapped. Now, here what happens? Gas is trapped, gets better रहेगा, gets trapped in this empty space. अब पहले यहां तक नोट करो, फिर आगे हम लोग पढ़ते हैं। Now have a look. Question related to hydrogen bond. Question related to hydrogen bond. Bonding. Why ice floats on water? Why ice floats on water? Float क्यों करना शुरू करता है? The reason is, आंसर आप लिखोगे due to hydrogen bonding between atoms of oxygen and hydrogen of two molecules of water. Yeah, due to hydrogen bonding between atoms of oxygen and hydrogen of two molecules of hydrogen and two molecules of water. Now, अब यहां पर बातें आती हैं इन द सिमिलर वे। अब इसमें आप क्या कहोगे, ये देखो ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन टू एटम्स ऑफ ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन ऑफ द टू मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। तो अब इससे क्या होगा, अब यहां पर जब दो मॉलिक्यूल के बीच में क्या हुआ, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हुआ, thus a cage like formation could be observed in which gases gets trapped. अब यहां पर क्या है, दो एटम्स जो हैं किसके, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के, उन दोनों के बीच में दो अलग अलग मॉलिक्यूल्स की क्या बन रहा है, हाइड्रोजन बॉन्ड, और इस तरीके से क्या बनता है, एक केज लाइक स्ट्रक्चर बनता है जिसमें हमने कहते हैं क्या आता है बेटे, गैसेस ट्रैप हो जाते हैं। और गैसेस ट्रैप होने के कारण क्या होता है, वहां पर आपको देखने को मिलता है कि आइस फ्लोट करता है। ठीक है, आप नोट कर लेंगे। या इसको थोड़ा हम बेटर करते हैं, बिटवीन SEV and several between, यहां पे बेटर रहेगा, due to formation of hydrogen bond between several molecules of water. Several molecules of water आपस में क्या बनाते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग एग्जिस्ट करता है, जिसके कारण आपका क्या होता है, वहां पर गैसेस ट्रैप हो जाती हैं।
ठीक है, मिटाते हैं इसको। अब बातें हमारे सामने आती हैं कि सर ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गया, केमिकल बॉन्डिंग यहां तक हमें समझ में आया। अब इसके बाद हमारे सामने आता है मेटल्स। मेटल्स की हम लोग बातें करने जा रहे हैं, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, फिर हम लोग बातें करते हैं मेटलॉइड्स की। तो अब यहाँ पर देखेंगे हम, केमिकल बॉन्डिंग इतना तो आपको पढ़ना था जो सिलेबस में था, 3 तरह का बॉन्ड, जिसमें हमने पढ़ा आयोनिक बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड एंड हाइड्रोजन बॉन्ड। अब हम लोग जो नेक्स्ट पार्ट इस चैप्टर का देखने जा रहे हैं, दैट इज प्लाज्मा एंड बीईसी, प्लाज्मा एंड बीईसी। Plasma. What do you mean by this term plasma? Look, अगर कोई कहे कि define plasma, it is fourth state of matter that exists at very high temperature, that exists at very high temperature। अब प्लाज्मा क्या होता है, सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं, फिर लिखना स्टार्ट करते हैं। प्लाज्मा हमारा उस तरीके का स्टेट है जो कि बहुत हाई टेम्परेचर पे फॉर्म करता है। भाई हाई टेम्परेचर पे हमारे क्या होंगे, गैसेस आयोनाइज हो जाएंगे, गैसेस गेट्स आयोनाइज्ड। नाउ इफ गैसेस गेट आयोनाइज्ड, तो उसमें हम लोग क्या कह सकते हैं कि सर गैसेस तो हमारे आयोनाइज कर गए, तो उससे क्या होगा, आयंस दो तरीके के होते हैं, या आइदर कैटायन और एनायन। या तो हम बात करेंगे किसकी, कैटायन की या फिर एनायन की। तो हैव अ लुक, यहां पे नोट करके आप लिखोगे कैटायन। कैटायन मींस एटम हैविंग पॉजिटिव चार्ज, एनायन एटम हैविंग नेगेटिव चार्ज। इस चीजों का आप ध्यान रखोगे। What is cation? The atom having positive charge and anion having negative charge। तो होता क्या है कि प्लाज्मा तब बनता है हमारा जब हम बहुत ज्यादा हीट करते हैं, किसको, गैसेस को। और जब गैसेस को बहुत ज्यादा हीट आपने कर दिया, तो हीट करने के बाद मोर देन 1000 डिग्री सेल्सियस जब आप हीट करना स्टार्ट करते हो, तो वहां पर क्या आप देखते हो बेटा, प्लाज्मा में एटम की बात करें, गैसियस एटम, गैसियस एटम when heated strongly। अब यहां पर क्या होगा, जैसे इसको हीट किया, तो अब ये क्या बन जाएगा, एटम विद अ पॉजिटिव चार्ज एंड इलेक्ट्रॉन गेट एक्सपेल्ड आउट। तो अब ये जो कंडीशन हुआ, ये हो गया तुम्हारा एटम, एटम में क्या आ गया बच्चे, पॉजिटिव चार्ज, और पॉजिटिव चार्ज के बाद यहां क्या आ गया आपका, इलेक्ट्रॉन। तो यहां पर हमने बात किया एटम हैविंग पॉजिटिव चार्ज एंड दिस इज इलेक्ट्रॉन, एंड दिस कंडीशन इज कॉल्ड प्लाज्मा। मींस व्हाट इज प्लाज्मा? प्लाज्मा इज बेसिकली अ कॉम्बिनेशन ऑफ कैटायन एंड इलेक्ट्रॉन्स। ये दोनों चीज एक जगह पे मौजूद होते हैं, वहां पे हमें नजर आता है सुपर आयोनाइज्ड स्टेट ऑफ एटम, एंड दिस इज नोन एज प्लाज्मा। आपको जान के हैरानी होगी कि मोस्ट ऑफ द यूनिवर्स, जो हमारा यूनिवर्स है, उसमें 99% क्या है, प्लाज्मा है। इन यूनिवर्स, यूनिवर्स में मैक्सिमम 99% क्या है, प्लाज्मा है। ये प्लाज्मा हमें देखने को मिलता कहां है? अगर कोई कहे कि भाई प्लाज्मा हमारा एग्जिस्ट कहां करता है, तो प्लाज्मा हमारा बहुत जगह एग्जिस्ट करता है। पहले आप इसको नोट कर लेंगे, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम इसमें। एग्जाम्पल ऑफ प्लाज्मा, सबसे पहला आप लिख लेंगे कि
व्हाट आर द एग्जांपल्स ऑफ प्लाज्मा में। सबसे पहले आएगा आपका एग्जांपल्स में आप लिखोगे सन। कहां वी कैन फाइंड आउट ऑल दीज थिंग्स। गैस प्लाज्मा कैन बी found surface of sun, neon bulbs, CFL bulbs। तीसरे को पहले लिखेंगे आप। आपने बात किया था अभी CFL नॉर्दर्न लाइट्स और ऑरोरा बोरेलिस। नॉर्दर्न लाइट्स आपने देखे होंगे, वहां पर भी ज्यादातर क्या पाया जाता है आपका प्लाज्मा। तो अब आप इसको नोट कर लें, तब हम लोग इसमें आगे बढ़ते हैं। जो नेक्स्ट टॉपिक हमारे सामने आता है, नेक्स्ट स्टेट, द फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर। ये फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर एंड द फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर इज BEC, Bose-Einstein condensate। Bose-Einstein condensate। हाँ बोलो, प्रीवियस क्लास तक हमने जो पढ़ा वो पढ़ा था कंडेंसेशन क्या होता है। नाउ व्हाट इज कंडेंसेशन? द प्रोसेस बाय विच gases can be converted to the liquid state। Gases can be converted to the liquid state by increasing pressure and decreasing temperature। So at high pressure and very low temperature, by increasing pressure and decreasing temperature। तो हमने कहा at very low temperature means हम लोग उतने कम टेम्परेचर में, कितना कम, तो कोई कहे तो at 0 केल्विन, लास्ट क्लास हमने वो भी पढ़ा था। 0 केल्विन मींस -273.15 केल्विन तक आते आते हमारे सामने जो क्लम्प्स मौजूद होने लगते हैं। क्लम्प्स का मींस बहुत सारे एटम्स हैं, वो क्या होने लगते हैं, एग्रीगेट होंगे और तब बनाएंगे BEC। तो ये कब बनता है, क्या बनता है, वो अभी हम आगे डिस्कस करते हैं। पहले आप इसको नोट करें। हाँ, तो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं स्टूडेंट्स बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट के बारे में। तो बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट के बारे में बात करें तो वहां पर आएगा गैसेस विद वेरी लो डेंसिटी लाइक लिक्विड हीलियम। तो यहाँ पे लिक्विड हीलियम की अगर बात करें, लिक्विड हीलियम, तो यहाँ पर वैसे वैसे जो गैसेस के सैंपल होंगे, अब कितना लो डेंसिटी होना चाहिए तब हमारा बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट हम लोग बना सकते हैं। अबाउट 1 लाख टाइम less dense than air। एयर से 1 लाख गुना क्या होना चाहिए, उसकी डेंसिटी कम होनी चाहिए। भाई आपको डेटा कहां से मिला, तो ये आपको रेफरेंस है, आप देख सकते हैं, रेफरेंस है NCERT पेज नंबर 10। वहां पर आप देखोगे कि सर हमारे सामने चीजें क्या आई, 100,000 टाइम, 100,000 टाइम लेस डेंस देन एयर। तो ये हमारे सामने आता है कि बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट किस तरह की गैसेस से हम बना सकते हैं। एग्जांपल हमने ले लिया था लिक्विड हीलियम। अब आते हैं भाई और क्या क्या है, टेम्परेचर रिक्वायरमेंट। टेम्परेचर रिक्वायरमेंट, टेम्परेचर रिक्वायरमेंट किस तरह का हो गया, टेम्परेचर रिक्वायरमेंट होता है, तो वहां देखो अबाउट 0 केल्विन और -273.15 केल्विन। हमने डिग्री सेल्सियस पढ़ा था, फ़ारेनहाइट पढ़ा और केल्विन पढ़ा था। तो वहां पर हमारे सामने आया अबाउट 0 केल्विन या -273.15 केल्विन। अब आते हैं कि सर ठीक है, हमारे सामने इतने फैक्ट्स एंड फिगर्स हमारे सामने आते हैं, बोस हो गया, बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट हो गया। थोड़ा इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखें तो सबसे पहले 1990 की बात है, जब बोस जो हमारे इंडियन साइंटिस्ट हैं, उन्होंने एक नए स्टेट अपनी कैलकुलेशन में
इसके बारे में चर्चा की, एक नेक्स्ट स्टेट ऑफ मैटर के बारे में। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सर ठीक है कि बोस के बारे में हुआ, आइंस्टीन अपनी उन्होंने नॉलेज आइंस्टीन के साथ शेयर की और दोनों ने मिलकर कैलकुलेशंस दिया और तब बातें आई बोस आइंस्टीन कंडेंसेट के बारे में। अब सन 2001 की बात करें, 2001, उस समय 3 अलग-अलग साइंटिस्ट थे जिन्होंने, जिसमें आया था वुल्फगैंग, एरिक वुल्फगैंग की बात करें तो उन्होंने कंडेंसेट को बकायदा रूप दिया, एक ऐसा मैटर बनाकर दिखाया। अब इसमें होता क्या है कि बोस आइंस्टीन कंडेंसेट एक ऐसा मैटर होता है जो कि एक सुपर कंडक्टर की तरह काम करता है। हालांकि बहुत लो टेम्परेचर पे एग्जिस्ट करता है, मॉलिक्यूलर मोशन एकदम सीज कर जाते हैं, बट हाँ वहां पर क्या होगा, कंडेंसेट बनाते समय आइंस्टीन बोस आइंस्टीन कंडेंसेट में इसमें प्रॉपर्टी होगा कि जो एटम्स होंगे वो सुपर इंपोज करते हैं एक दूसरे पे, और सुपर इंपोज करने के बाद वहां पे क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी इजीली फ्लो कर पाएगा। तो ये क्या करेगा, एक सुपर कंडक्टर की तरह काम में आ सकता है। कौन सा, तो बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। आप इसको नोट करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस चैप्टर में हमारे सामने नेक्स्ट टॉपिक्स जो भी आते हैं वो आपके पास हमने अभी तक डिस्कस किए, मगर ले देके एक बात बहुत क्लियर आता है कि ज्यादा अच्छी तरह से आपको ठंडक कौन पहुंचाएगा, आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस की वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट देखो। क्वेश्चन, व्हिच फॉर्म of water have better cooling capacity, better cooling capacity किसकी होगी, आइस at 0 डिग्री सेल्सियस और water at 0 degree Celsius, which have the better cooling capacity, either water at 0 degree Celsius or ice at 0 degree Celsius। आप आंसर पहले समझ लें, ice at 0 degree Why? क्यों आइस ही क्यों ज्यादा बेटर कूलिंग कैपेसिटी रखेगा? तो इसके पीछे आंसर आता है जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था, वो था लैटेंट हीट का कॉन्सेप्ट। याद होगा आप सबको लैटेंट हीट। लैटेंट हीट में हम लोग अगर चर्चा करें तो देखो इसको ऐसे समझते हैं, पहले समझ लेते हैं, हमें ज्यादा ice, in case of ice, before it melts, it takes at 0 degree Celsius. Melting, it takes heat from the surrounding. ठीक है, before melting it takes heat from the surrounding equal to its latent heat of क्या, fusion, equal to its latent heat of fusion. Now as it become water, still water at 0 degree Celsius. After getting melt,
अब मेल्ट होने के बाद क्या होगा, जब वाटर बन गया, द टेम्परेचर इज स्टिल, और द टेम्परेचर रिमेन्स 0 डिग्री सेल्सियस। भाई क्यों, कहा जाए वाई? बिकॉज most of heat energy is consumed as latent heat, and we know very well latent heat is a hidden heat. And what is hidden heat? Heat that is required to overcome intermolecular force of attraction. तो intermolecular force of attraction को तोड़ने के लिए ज्यादातर क्या हुआ, इसकी हीट क्या रही, 0 डिग्री सेल्सियस रह गई। कितना रह गई बेटे, 0 डिग्री सेल्सियस ही रह गई। अब क्या होगा, नाउ इट अगेन यूज heat, absorb heat from the surrounding. Now it again absorb heat from the surrounding to CHA, change its state from liquid to gas. Thus we can observe in case of ice, heat from the surrounding will be absorbed twice. At first it will be absorbed to convert ice to water, and in the second case from water to gas. But in case of water at 0 degree Celsius, heat will be absorbed only once from the surrounding, and thus we can say ice can cool better at the same temperature, water cannot. So now students, as a whole we have discussed in this chapter matter and its surrounding the following topics. The number one is what is solid, liquid and gas, difference between solid, liquid and gas. Third topic we had discussed, that is interconversion of temperature, that is from Kelvin to degree Celsius and degree Celsius to Kelvin, from degree Celsius to Fahrenheit and Fahrenheit to degree Celsius, and Kelvin to Fahrenheit and Fahrenheit to Kelvin. Then we had discussed about application of latent heat in day-to-day life. Then we have discussed about some basic points of this chapter, that is boiling point, melting point, condensation, then sublimation and evaporation, and the factor affecting evaporation. And that's all from my side. Thank you very much. Thanks for watching. Don't forget to like the video. And don't forget to subscribe.